بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دوستان محترم، اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے اور اس کی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کے سامنے درود محل گوشہ عافیت سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس تحریک کے ساتھ کہ درود پڑھو، بے حساب پڑھو۔ دوستو، آج ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ درود پاک کتنی تعداد کے بعد روحانی طور پہ روح پرواز شروع کرتی ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ دوستان محترم، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے تحریک کا نام لکھا درود پڑھو اور بے حساب پڑھو تو پھر شمار کی بات کیوں کرتے ہو؟ دوستو، ہم شمار کی بات فقط اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آج آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی بار چوما ہے، کتنی بار ہونٹوں نے، آپ کے لبوں نے اس حسن والے اور اس کمال والے مدنی تاجدار کے نام کو بوسہ لیا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو گویا کہ آپ نے 2 مرتبہ بوسہ لیا، اور دوسری دفعہ جب درود پاک کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر 2 مرتبہ آپ نے بوسہ لیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سوال کی جانب کہ کس تعداد میں درود پاک کمپلیٹ پڑھا جائے تو اس کے بعد روح پرواز کرنا شروع کرتی ہے۔ دوستان محترم، درود پاک ایک ایسی برکت والی عبادت ہے اور اتنی عظمت والی عبادت ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ پڑھا جائے تو اسی وقت روح پرواز شروع کر دیتی ہے۔ کتنی والی تو بات ہی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں اور پھر آگے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی بھی شخص زندگی کے 40 سال، 50 سال، ایون کہ 70 سال یا زندگی کے کسی بھی حصے میں جب وہ غیر مسلم ہو یا وہ مسلمان کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، جب وہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دلیل کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ اس کے بعد زندگی بھر اگر کلمہ نہ پڑھے اور زندگی بھر عبادات سے دور رہے، منکر نہ ہو، انکاری نہ ہو، یہ نہ کہے کہ نماز کون سا حکم ہے، مانے کہ حکم ہے، اللہ کے احکامات کی انکاری نہ کرتا ہو اور وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے، تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک مرتبہ پڑھا
जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, तो वो एक मर्तबा पढ़ने का इतना अजर और इतनी रूह को कुव्वत मिलती है कि वो जिंदगी के उसके अंदर जो नूर की चिंगारी बनती है एक दफा कलमा शरीफ पढ़ने से, वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर तौबा करके अल्लाह का बंदा बन जाता। जब कोई उसको फूंक लगाता है तो वो चिंगारी शोला बनती है और वही शख्स दोबारा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता एक मर्तबा कलमा पढ़ने से। तो इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत ये है, इसलिए इसको अफजल जिक्र भी कहा गया, ये तमाम जिक्रों से अफजल है। इसकी हिकमत ये है कि कलमे में जब आप कहते हैं ला इलाहा, तो ला इलाह में अल्लाह का इसमें जात है और अल्लाह के इसमें जात की इतनी बरकत है और उसके इतने समरात हैं कि वो रूह को किसी ना किसी स्टेज पर दोबारा बका दे के अपने रब से वासिल कर देता है। और दूसरी उसमें हिकमत ये है कि उसके दूसरे हिस्से में इसमें मोहम्मद है। और गौर कीजिए, उसके पहले हिस्से में इसमें जात है और दूसरे में उसके महबूब का इसमें जात है, जाती नाम है। इन दो नामों की बदौलत अगर एक मर्तबा कलमा पढ़ने वाला वो जिंदगी भर नाफरमानियां करता रहे और काफिर ना कहलाए, मुशरिक ना कहलाए, और उसके रूह में ईमान की हरारत मौजूद रहे, तो दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि इसमें भी हिकमत यही है कि जब आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा तो इसमें जात आ गया। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा तो इसमें जात है। सल्ले अला मुहम्मदिन, फिर महबूब का इसमें जात आ, महबूब का इसमें जात आ। अब देखें, कलमा पढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कोई हद, कोई उसके लिए जवाल का टाइम नहीं है, उसके लिए कोई कैद नहीं कि आप सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें कि शाम को पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, महफिल में पढ़ें या बज़म में पढ़ें। क्योंकि नाम दोनों सूरतों में आशिक और माशूक का नाम है, महबूब और मुहिब का नाम है, और यही दर्जा अल्लाह ने दरूद को अता फरमा दिया। यही दर्जा दरूद पाक, यही दर्जा दरूद पाक को अता फरमाया। उसमें अपना नाम भी सिफाती नहीं रखा, जाती नाम रखा, और महबूब का नाम भी सिफाती नहीं रखा, वो भी जाती रखा, ताकि जब ये दो महबूब और मुहिब की मोहब्बत के दरमियान तीसरा सलाम लेके हाजिर हो तो उसकी रूह को इतनी बका अता कर दूं कि अगर उसके सारे गुनाह एक तरफ और बरोज़े क़यामत उसका एक मर्तबा दरूद पढ़ना एक तरफ, वो गुनाहों को मिटाकर उसे जन्नत का हकदार ठहरा दे। ये मैं बात अपने पास से नहीं कर रहा, हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। मेरे करीम रहमत वाले आका ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, मेरे एक उम्मती का नामा अमाल तोला जाएगा, मेरी उम्मती का एक का नामा अमाल तोला जाएगा, और जब उसका नामा अमाल तोला जा रहा होगा तो उस वक्त मैं उसके पास नहीं होऊंगा, तो मुझे मैसेज मिलेगा कि आपके एक उम्मती का नामा अमाल तोला गया और उसके नेकियां कम हो गईं और उसके गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि ऐ बारी ताला, मेरे इस उम्मती का हिसाब मीजान मेरी आंखों के सामने किया जाए। तो गोया कि अल्लाह फरमाएगा दोबारा मीजान किया जाए मेरे महबूब की ख्वाहिश पर। तो जब मेरे करीम आका के सामने उसका दोबारा मीजान होगा तो उसका फिर गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा।
जैसे ही गुनाहों वाला पलड़ा भारी होगा तो मेरे करीम आका एक पर्ची निकालेंगे और उसके नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे, उसके नेकियों वाले पलड़े में वो रख देंगे। और जैसे ही वो पर्ची उस पलड़े में जाएगी तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो वो अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पर्ची में क्या है? तो मेरे करीम आका फरमाएंगे कि आपने एक मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ा था। ये पर्ची में वो एक मर्तबा दरूद लिखा है, वो एक मर्तबा दरूद लिखा है। तो अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब पढ़ा था। तो मेरे करीम फरमाएंगे, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। तो पता चला कि रूह की जो परवाज है वो एक दफा दरूद पढ़ने से ही शुरू हो जाती है। मशाइख उज़ाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मोहब्बत के साथ और दिल जमी के साथ और इखलास के साथ, बेशक पहली मर्तबा ही क्यों ना हो, वो जब इखलास के साथ इस मोहब्बत में और एहतमाम के साथ दरूद पढ़े कि उसके ख्याल में हजूर की जात के अलावा कोई और ना हो और उसकी तसव्वुर में हजूर के अलावा कोई ना हो, तो जैसे ही उसके मुंह से दरूद पाक निकलेगा उसको हजूर की बारगाह में पेश कर दिया जाए। उसको हजूर की बारगाह में, आप अंदाजा कीजिए, ये वो इबादत है कि पहली दफा पढ़ने से दरे मुस्तफा पे हाजिरी करवा देती है। और जो एहतमाम के साथ ना पढ़े, अब अगर रूह की परवाज शुरू नहीं होती, रूह को रूहानियत नसीब नहीं होती, तो मुझे बताइए, अगर रूह को रूहानियत नसीब ना हो तो वो दरे रसूल तक कैसे पहुंचे? दरे रसूल तक पहुंचता है तो इसका मतलब है रूह को एकदम, अब देखें, आपने एक महीना कुछ ना खाया हो, एक महीना आपने कोई गिजा ना ली हो और आप भूख के मारे निढाल पड़े हो, तो आपको खाना मिले एक ही वक्त का, तो आपके जिस्म में कुव्वत आ जाएगी कि नहीं? क्योंकि जिस्म की वो गिजा है, वो एक दूसरे से आशना हैं। इसी तरह नाम मोहम्मद रूह की गिजा है, रूह इस नाम से आशना है। तो जैसे ही गोया के नाम मोहम्मद लिया, रूह को उसकी आशनाई और मालिक मिला, तो रूह उसी वक्त परवाज करती है और महबूब के कदमों में सर रख देती है। ये उसी वक्त परवाज में चली जाती, पहली ही मर्तबा में परवाज में चली जाती। और अगर आम रूटीन में ही पढ़ा जाए कि तसव्वुर इस कदर कभी ना हो, तो फिर क्या होता है? फिर भी उस शख्स का जो एक मर्तबा पढ़े, उसका दरूद भी फरिश्ते लेकर मेरे करीम की बारगाह में पेश करते हैं कि फलां बिन फलां। और जिसका दरूद पढ़ना और उसका नाम और उसके वालिदैन का नाम दरे रसूल तक पहुंच जाए, तो रूहानियत किसको कहते हो? रूहानियत और क्या होती है दोस्तों? इसलिए दरूद पाक, मैं ये कहता हूं कि दरूद पाक जैसे ज़ाहिरी जिस्म के लिए पानी तमाम ग़िज़ाओं से ज्यादा बड़ी कुव्वत रखता है। अब देखें ना कि आप और मैं अगर भूख लगी हो तो हम रोटी की जगह कोई भी और चीज खा सकते हैं तो भूख मिट सकती है, लेकिन पानी की जगह कोई और मशरूब लें तो वो प्यास नहीं खत्म करता। तो मैं ये समझता हूं कि रूह के लिए दरूद पाक पानी का दर्जा रखता है और पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, और इसी तरह दरूद पाक पढ़ने के बगैर भी जन्नत हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों, इस तहरीक का हिस्सा बनो।
इस तहरीक का हिस्सा बनो। जिस करीम आका ने जिंदगी भर जिसके लबों पर रहा उम्मती उम्मती उम्मती, उस उम्मत को चाहिए उसके लबों पे मेरे करीम आका का नाम रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वो भी बार बार अपने करीम आका का नाम चूमता रहे ताकि दुनिया में भी इज्जत हासिल कर सके और आखिरत में भी अल्लाह उससे राजी हो जाए। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो दोस्तान मोहतरम इस तहरीक का हिस्सा बनो। सिर्फ 13 मरतबा इसे पढ़ के तो देखो यार, इखलास के साथ पढ़ो तो सही। जैसे कलमा पढ़ने के बाद उसका नूर रूह से खत्म नहीं होता, इसी तरह दरूद का नूर भी खत्म नहीं होता। अल्लाह आपको और मुझे इस हुस्न वाले, इस बरकत वाले, ये 2 करीमों की बात है ना, ये 2 करीम है ना, अल्लाह भी करीम तो रसूलुल्लाह भी करीम। अल्लाह ने खुद को करीम कहा तो सिर्फ खुद को नहीं कहा, महबूब को भी फरमाया तू भी करीम है। खुद को कहा मैं रहमान हूं, फरमाया तू रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया मैं रऊफ हूं तो फरमाया तू भी मोमिनों के लिए रऊफ है। फरमाया मैं रहीम हूं तो अपने महबूब के बारे में खिताब फरमाया तू भी रहीम है। तो मामला जब 2 करीमों के दरमियान हो, मामला जब 2 रहमानों के दरमियान हो, मामला जब 2 रऊफों के दरमियान हो, तो मुझे बताइए कि आप जब दरखास्त मालिक रऊफ और रहीम को महबूब रऊफ और रहीम के लिए देंगे तो कैसे रद्द होगी? और रूह में कुव्वत क्यों नहीं आएगी? वो परवाज क्यों नहीं शुरू करेगी? तो वो फौरन परवाज करेगी, क्योंकि जब आप करीम के बारगाह में करीम के लिए दरखास्त पेश करेंगे तो करीम रद्द करेगा ही। तो बात करीम की हो रही है। तो दोस्तों इसलिए तमाम अहबाब से दरखास्त है कि दरूद पाक को ओढ़ना बिछोना बनाओ। इसको जिंदगियों में सबसे आला नाम है और सबसे आला जगह पर इनको जगह दो, और सबसे आला जगह दिल है जो मस्कन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्कन खुदावंद है। अल्लाह आपको और मुझे कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला बनाया, और अल्लाह जिसने आज अहद किया और पहले कभी नहीं पढ़ा था, ऐ अल्लाह उसको इस्तकामत नसीब फरमा कि वो आज के बाद कभी दरूद के बगैर सोए नहीं। मैं एक मरतबा फिर तमाम अहबाब से जो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को शेयर करें और ख़ुद भी हमारे साथ फिर एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद पाक में लाइव शामिल हों, ताकि ये तादाद हज़ारों से बढ़ती हुई लाखों में और फिर करोड़ों में चली जाए। और इसको बढ़ाना है अल्लाह के फ़ज़ल से, और ये तहरीक हज़ूर रसूल करीम के तमाम ग़ुलामों की तहरीक है। दरूद पाक रसूलुल्लाह पे पढ़ना है और इसमें हम सब ने शामिल होना है। और इसमें शामिल होने का तरीका, सबसे पहले ख़ुद पढ़ें, फिर आगे दावत इसकी दें ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुँचे। अल्लाह आपको और मुझे जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे नबी की वफ़ा नसीब फरमाए और आका करीम की ग़ुलामी नसीब फरमाए, और लबों को बार बार नबी रहमत का नाम चूमने की आदत अता फरमाए।